Assalamualaikum. This video is for class 8 biology. Today we will read page number 65, the human heart. The human heart lies in the central part of our chest in between the two lungs, just above the diaphragm. And it is conical in shape and its size is same as one's weight, tightly folded first. It is a muscular pumping organ and made up of cardiac muscles. यानी कि हार्ट जो है that is one of the organs of the human body, and it is a very main organ because it pumps blood throughout the all other parts of the body. और एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. ये जो 7th लाइन है ये आप लोग को अंडरलाइन करना है 7th सेंटेंस को. यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन एंड मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. The human heart is covered by a double-walled membranous sac called the pericardium. इसके ऊपर एक कवर होता है, membranous sac होता है, membranes का एक कवर होता है जिसको हम लोग pericardium बोलते हैं. ये नाम याद रखना है pericardium. Internally the human heart is divided by a partition or septum into two halves. Two halves का मतलब है कि upper portion और lower portion. इसको हम लोग ऑरिकल और वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं. देयर आर टू ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, एंड टू वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. नाउ व्हाट आर ऑरिकल्स? द ऑरिकल्स आर द रिसीविंग चैम्बर्स. Receiving chambers of blood, their walls are thin and smooth. The right auricle receives deoxygenated blood from the whole body through inferior vena cava and superior vena cava. यानी कि ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड लेकर के हार्ट की तरफ सप्लाई करता है. सुपीरियर वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द हार्ट, यानी कि बॉडी के ऊपर के पार्ट से जो ऑर्गन होता है वहां से वो ब्लड लेकर के हार्ट की तरफ आता है हार्ट के राइट ऑरिकल में. और इंफीरियर वेना कावा जो है वो भी हार्ट की तरफ ब्लड लेकर के आता है. हार्ट के नीचे जितना ऑर्गन्स होता है वहां से वो ब्लड ला करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट ऑरिकल में जमा करता है. तो ऑरिकल इज द रिसीविंग चैम्बर दैट इज रिसीविंग ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. Now another is left auricle. Left auricle भी receiving chamber है. It receives oxygenated blood from lungs. यानी कि जो superior और inferior vena cava क्या है, veins है, that is carrying the oxygenated blood. And another is pulmonary vein that is carrying oxygenated blood from lungs towards the heart. These are the four chambers of the heart. So auricles are the receiving chamber. Right auricle receives only deoxygenated blood and left auricle receives oxygenated blood. Now another is ventricles, right ventricle and left ventricle. This is given in page number 66 of your book. The ventricles, the wall of the ventricles are thick and rough. These are the distributing chambers of the heart. The right ventricle pumps deoxygenated blood received from the right auricle to the lungs through pulmonary artery. ये क्या बता रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी यानी कि राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड रिसीव करता है राइट ऑरिकल से. राइट ऑरिकल से रिसीव किया ब्लड दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल लेता है एंड दैट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी मीन्स जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है. पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लंग्स. ये वेंट्रिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर है हार्ट का, यानी कि ये हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को. राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ ले जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जस्ट इसके ऑपोजिट काम करता है. लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल, जहां से वो ऊपर से अपने ऊपर वाले पोर्शन से, यानी ऊपर के पोर्शन को ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वेंट्रिकल बोलते हैं. तो ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल लेता है एंड देन थ्रू aorta it divides into different arteries and passes oxygenated blood towards different organs of the body. So ventricle is the distributing chamber of the heart. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे pacemaker of the heart that is given in page number 67 of your book. Pacemaker क्या होता है? Pacemaker is the SA node or sinoarterial node is a natural pacemaker of the heart. It is located in the right atrium of the heart, close to the place where superior vena cava opens. सुपीरियर वेना कावा क्या है? एक ऐसा वेन जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर के आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये जस्ट उसके नीचे होता है. ऐसे नोड जो है वो हार्ट का पेसमेकर है, यानी कि ये हार्ट के पंपिंग को कंट्रोल करता है, रिदम को कंट्रोल करता है. पेसमेकर के बारे में एक आंसर आपको दिया जाएगा लिखने के लिए, वो आपको कॉपी करना है.
इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। इसके बाद हम लोग सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 8 बायोलॉजी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। हम लोग अभी तक हार्ट के चेम्बर्स के बारे में पढ़े हैं कि देयर आर 4 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, दैट इज ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। तो ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है हार्ट में? तो फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी the veins collect blood, that is deoxygenated blood or impure blood, and it collects towards the right auricle of the heart. राइट ऑरिकल में लेकर के आता है। फिर राइट ऑरिकल से हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू ट्राइकुस्पिड वेल्व। ये एक वेल्व है जिसमें 3 फ्लैप्स होता है, ढक्कन की तरह फ्लैप्स होता है जो ब्लड को पास करने में हेल्प करता है ऑरिकल टू वेंट्रिकल। इसका नाम है ट्राइकुस्पिड वेल्व। ये यहाँ पर होता है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, दैट इज ट्राइकुस्पिड वेल्व। ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पास कराता है, इम्प्योर ब्लड। देन थ्रू राइट वेंट्रिकल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पासेस थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स द लंग्स। ये लंग्स की तरफ जाता है। इसको कौन लेके जाता है? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक ले जाता है। देन फ्रॉम लंग्स it gives out carbon dioxide and takes oxygen, and that become pure blood. Then the pure blood passes from lungs towards the heart. The vessel that carries the oxygenated blood is called pulmonary vein. जो pulmonary vein है वो blood को लेकर के आता है हार्ट की तरफ towards the left auricle. अब वो left auricle में oxygenated blood आ गया। वो oxygenated blood लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल इट पासेस थ्रू बाइकुस्पिड वेल्व। जैसे यहाँ पर ट्राइकुस्पिड वेल्व था वैसे ही लेफ्ट साइड में बाइकुस्पिड वेल्व होता है। उस वेल्व के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अओर्टा के थ्रू हार्ट से बाहर निकलता है। यानी कि अओर्टा इज एक बड़ा ब्लड वेसल होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टूवर्ड डिफरेंट ऑर्गन्स। उसके बाद ये ऑर्गन में जाने के बाद क्या होता है? ऑर्गन का अपना फंक्शंस होता है। उस ऑर्गन में जैसे जैसे फंक्शन खत्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है सपोज, तो वहां पर क्या होगा कि दोबारा से ब्लड जो है वो इम्प्योर हो जाएगा। वो फिर इम्प्योर ब्लड थ्रू वेन्स दोबारा से हार्ट में आएगा, वो पंप होकर के हार्ट में आएगा। सो ऑरिकल उसको रिसीव करेगा, फिर वो वेंट्रिकल को देगा, फिर वो लंग्स में प्यूरिफाई होने जाएगा। So by this the whole process the blood circulates between the heart and the lungs or different parts of the body or inside in human being. ये आप लोग का सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दिया हुआ है और ये आपके बुक के पेज नंबर 67 में दिया हुआ है। इसको आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर ये पैराग्राफ है, इसको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। Now in the next page it is coronary arteries and coronary veins. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है लेकिन इसका नाम याद रखना है कि हार्ट के बीच में द आर्टरीज दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द aorta एंड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। जो आर्टरी हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। एंड द कोरोनरी वेन्स दे कैरी इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट मसल एंड एम्प्टी इट इनटू द कोरोनरी साइनस। जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड ले जाता है उसको कोरोनरी वेन्स बोलते हैं। इसका नाम जस्ट याद रखना है, द ब्लड वेसल दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट दैट आर कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। नाउ व्हाट इज हार्ट साउंड? नॉर्मली इन a healthy person the heart pumps for 72 times a minute on an average. Underline the third sentence. The contraction and relaxation of the heart. Contraction यानी कि जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड रिसीव करता है, और रिलैक्सेशन यानी कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा यानी कि हार्ट का लोअर पोर्शन रिलैक्स करता है और ब्लड को हार्ट से एलिमिनेट करता है। देन इन बिटवीन दैट द हार्ट पम्प्स फॉर 70 to 80 टाइम्स पर मिनट और 72 टाइम एवरेज पर मिनट। यानी कि एक हेल्दी पर्सन में हार्ट कितने बार पंप करता है? 72 टाइम्स। उसके बाद आपका पैराग्राफ दिया है कार्डियक साइकिल। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। द होल फिनोमिना ऑफ पंपिंग ऑफ द हार्ट where the auricle pumps and contracts and receives the blood and ventricles relax and distributes the blood from heart towards the organ. The whole process is called cardiac cycle.
इस कार्डियक साइकिल में ऑरिकल भी काम कर रहा है, वेंट्रिकल भी काम कर रहा है, अओर्टा भी काम कर रहा है, वेन्स भी काम करता है। तो इस पूरे सीक्वेंस को एक नाम दिया गया है कार्डियक साइकिल। ये आपको मार्क करना है और इसको आप लोग याद कीजिएगा, द एंटायर सीक्वेंस से लेकर के कार्डियक साइकिल तक। नाउ व्हाट, आज के लिए इतना, यहीं पर वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।